हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजीस्वैग एंड आई होप आप जहाँ हो खैरियत से हो और आपका टाइम अच्छा गुजर रहा हो एंड आई होप यू आर enjoying the frequency. I'm recording as much as I can before I travel, so this is one of those episodes. And if you want to support, you can support this channel on patreon.com/ganjiswag, a part of which also goes towards education channel. आज ही मैं अपने एजुकेशन चैनल का जो हेड है मुस्तफ़ा साहब, उनके साथ मैं बैठ के कॉस्टिंग मेजर कर रहा था. सो वी हैव नियरली क्रॉस 3 million इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस. अभी वो चैनल लॉन्च भी नहीं हुआ है एंड 1.6 million has had been raised through some friends. तो बाकी तो अपना ही चल रहा है. और ये भी चलता जाएगा सिलसिला, ये भी रुकेगा नहीं. सो पेट्रियन जो है हमें उसमें भी हेल्प करता है. तो प्लीज़ इफ़ यू वांट यू कैन सपोर्ट दैट. और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं सपोर्ट करने के. जैज़ कैश, इजी पैसा, Instagram subscriber, Facebook subscriber, YouTube membership. There's so many ways you can support. So I really appreciate that. Thank you so much. चलते हैं आज की emails की तरफ. Why move abroad but not improve the living standards? Hi Junaid bhai, I'm a big fan and have been following you for many years and I'm very happy for your success, mashallah, and may Allah keep blessing you and your family with success, health and happiness. Ameen. I'm born in Pakistan but raised in Dubai and moved to Sweden a few years ago. I'm 28 and have graduated with a degree in finance from a reputable university in Dubai. This was a slight background about myself. Now, coming to my question, I have seen many people who come to Sweden from Pakistan for work and studies and then start working food delivery jobs. I understand student as it is a way of making some income while they study. My concern are people who live here not as students but do two jobs, 12 to 16 hours a day, and make so much money doing different odd jobs but are living in one room apartments with 2 to 3 kids, stuffing everyone in small rooms and not spending at all on their living standards. Why do they do that? I can promise you, I have met many people who do this, and when you talk to them, they seem to be proud of themselves, like तेरा भाई बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत पैसा है हमारे पास. तो फिर he says तो के spend करो ना थोड़ा पैसा. But they live in a shitty apartment in shitty areas and do not spend at all on raising their living standards whatsoever or try to find proper 40-hour a week job and work like normal people. Why do they do this? कहाँ से आते हैं ये लोग? Why make a reputation as अगर पाकिस्तानी हैं तो सिर्फ डिलीवरी की जॉब्स करेंगे? I'm not saying it's a stereotype, but why not thrive to improve life after traveling thousands of miles away from Pakistan? Thank you for taking my question. It's a very subjective thing, to each their own. अब कुछ लोगों का देखो यार, हर कोई जो है ना, कुछ लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं उन्होंने ज़ाहिर ज़िंदगी भर अगर पैसा नहीं देखा और बहुत मुतवसत तबके से आए हैं, तो वो जब पैसा आता ना तो वो फेयर में ही रहते हैं. क्योंकि जिसने गुर्बत देखी होती है ना, उसका वो एक ही फेयर में रहता है कि मैं दोबारा वहाँ ना चला जाऊँ, और वही फेयर उसको ड्राइव करता है कि सुबह उठ के वो जा रहा है. अब स्वीडन में जितनी बर्फ़ पड़ी है वो सुबह 4 बजे उठ के पहले शवलिंग कर रहा है और उसके बाद डिलीवरी पे निकल रहा है वगैरह वगैरह. एक तो वजह ये होती है. एक वजह ये होती है कि जनरली लोग कंजूस भी होते हैं, वो अपने ऊपर ख़र्चा नहीं करते. अगेन इसमें मैं एक मिसाल हमेशा देता हूँ कि देखें, किस्मत और नसीब का फ़र्क. कुछ लोगों की किस्मत में बहुत पैसा होता है लेकिन उनके नसीब में नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे यूट्यूबर, उनके मोहल्ले में एक आदमी अरबोपति आदमी रहता है. मैं उनका बिज़नेस नहीं बताऊंगा वरना बहुत आसान है समझना किसकी बात कर रहा हूँ. और उनके बच्चे नंगे पैर घूमते हैं मोहल्ले में. मुतवसत मोहल्ला है, उन्होंने वो मोहल्ला भी नहीं छोड़ा. और जो है अरबोपति है, लाइक ही अर्न्स इन बिलियंस, मगर उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया. कुछ लोगों को नहीं होती तमीज़ तहज़ीब और वो उसी में ही कंफर्ट में रहते हैं और अपने ऊपर. तो पॉइंट बीइंग, कुछ लोगों की किस्मत में बहुत पैसा होता है मगर उनको नसीब नहीं हो रहा होता. यानी कि आप उससे अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करें. अब ज़रूरी नहीं कि आपने बड़े बड़ा लुई विटॉन और प्राडा आपने पहनना है, वो इम्प्रूवमेंट नहीं होती. बट इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ आपके एक ओवरऑल आपकी वाइब में, समझ रहे हैं ना. तो लोग अपने ऊपर स्पेंड नहीं करते और वो कहते हैं बस ठीक है, 2 रोटी चल रही है, गुजारा हो रहा है वगैरह वगैरह. उन लोगों का एक्सपोजर नहीं होता और उन्होंने कोई एज सच तरक्की नहीं करनी होती. बस उनका मकसद पैसा होता है और वो पैसा पड़े पड़े बैंक वाले एंजॉय कर रहे होते हैं या फिर कोई और नस्ल एंजॉय करती है, वो एंजॉय नहीं कर पाते. इसलिए पुराने ज़माने में बड़ी बूढ़ियाँ
मतलब आई मीन टू से दी एल्डर लेडीज ऑफ द फैमिली हमेशा लड़कियों को दुआएं देती है, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे, राइट। किस्मत अच्छी नहीं करे, किस्मत में तो मिल जाएगा, बट नसीब भी हो तुम्हें, तो किस्मत और नसीब का ये फ़र्क है। तो बहुत से लोगों की किस्मत में बहुत पैसा होता है और बहुत बनाते हैं, मगर अगर आप उनके बच्चों को देखें या उनके आप ओवरऑल वो 90s की गाड़ी चला रहे होंगे, घर इम्प्रूव नहीं करते। आप वो एक चाइनीज़ कहावत है कि इफ़ द मनी दैट यू आर मेकिंग इज़ नॉट एलिवेटिंग द लेवल ऑफ हैप्पीनेस ऑफ यू और द पीपल अराउंड यू, देन यू आर ओनली कलेक्टिंग स्टैक ऑफ पेपर्स, कलरफुल पेपर्स। तो आप सिर्फ पैसा जमा कर रहे हैं और उसका कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा। तो कुछ लोग कंजूसी करते हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि हम यहाँ टेम्परेरी ही हैं और हम जितना पैसा समेट सके। हम एक, वो आपको याद होगा बचपन में फ़न हाउस आता था, मेरे एज के लोगों को पता होगा, उसमें एक राउंड होता था, एक कैंडी वाले रूम में बच्चों को छोड़ देते थे 30 सेकेंड्स के लिए या 15 सेकेंड्स, एंड ग्रैब एज मच एज यू कैन, राइट। तो उसी तरह लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ को यही समझते हैं कि यार हमने अब जैसे आप कह रहे हैं ना बच्चे हैं, तो बच्चे जब तक छोटे हैं हम जितना समेट सकते हैं समेटें, इससे पहले कि वो 13-14 के हों और प्यूबर्टी हिट करें, हमें तो फ़ौरन वापस जाना है जेलम, राइट। और फिर वहाँ पे दुकान खोलनी है और घर बनाने वगैरह वगैरह। कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है, और कुछ लोग ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट में, तो उनका तो माइंडसेट होता ही है, बिकॉज दे नो एक दिन उन्होंने वापस पीछे जाना है। तो वो कहते हैं यार ये कैसीनो है, और वो होता है ना, सो देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड लॉक स्टॉक एंड बैरल, एक मूवी का भी नाम है, आई नो। इट्स अ बार इन दुबई, टी कॉम, नाउ इट्स बर्शा हाइट्स। तो वो वहाँ मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज वहाँ के हाउस बैंड्स बहुत अच्छे हैं, and they play really really well, like they play all the 90s rock, collective soul, nirvana, सारे आपके जो ग्रंज सीन बहुत अच्छा है वहाँ का। तो वहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ ना, तो दे हैव दिस टाइम आउट थिंग, जिसमें 15 मिनट के लिए सारी ड्रिंक्स 13 दिरहम की हो जाती हैं, ओके। तो सॉरी, लॉकडाउन कर रही है, दिस इज़ प्री कोविड। तो वो लॉकडाउन होता है, वो उनके पास बड़ी स्क्रीन है, और उसका जो पूरा एम्बियंस है ना, इट्स लाइक आप किसी एक बहुत बड़े शिपिंग कंटेनर के अंदर हो, क्योंकि उसमें कंटेनर ही लगे हुए हैं जगह जगह। एंड इफ़ यू सी फ्रॉम द आउटसाइड, आपको लगेगा होटल का एक फ्लोर है बहुत ऊपर, उसमें कंटेनर बाहर दीवार से बाहर आया हुआ है। सो दैट्स लॉक स्टॉक। तो उसमें लगता है लॉकडाउन, और लॉकडाउन में क्या होता है जी, सारी प्राइसेस पे लॉकडाउन लग जाता है, गेट एनी ड्रिंक फॉर 13 दिरहम्स। अब आपने शॉट्स मारने हैं, बियर पीनी है, विस्की, व्हाटएवर, वो 13 दिरहम की हो जाएगी, राइट। उसमें लोग भाग के जाते हैं बाहर की तरफ और वो समेटने की कोशिश करते हैं, राइट। सो सिमिलरली कुछ लोग बाहर के मुल्कों को लॉकडाउन ट्रीट करते हैं, थोड़ा सा टाइम है और मुझे समेटना है, जितना समेट लूँ, जो याशी करनी वापस जाके पाकिस्तान में कर लेंगे, यहाँ पे नहीं देना, यहाँ पे यूरो नहीं खर्च करने। अच्छा, नो मैटर पाकिस्तानी जितने साल गुजार लें बाहर, वो इक्वेट रुपी से ही कर रहे होते हैं, कैलकुलेटर नहीं रखते अपना वापस कि 400 रुपये की रोटी आती है, अभी तो तू कमाता भी तो 8,000 है एक दिन का, वो नहीं देखते। तो वो कैलकुलेटर ऑन होता है, तो वो इसी तरह अपने आप को इन सिचुएशंस में रखते हैं। इवन इन दुबई बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा कमाने के बावजूद अपना लाइफस्टाइल एलिवेट नहीं करते, और वो कसम पुरसी की हालत में, जिसको उर्दू में कहते हैं, उसमें रहना पसंद करते हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं। एक टिपिकल वजह जैसा कि बीइंग देसीज, यू नो, अब देसी तो होते ही आपको पता है कंजूस हैं। अब वो कंजूसी भी कहाँ से डिराइव हो रही है? वो कंजूसी यहाँ से डिराइव हो रही है कि वी आर नॉट अ वेलफेयर स्टेट, वी आर ऑन आवर ओन। और आप जितने भी खुशहाल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर, अगर आप पाकिस्तान में एक वाइट कॉलर जॉब करते हो, आपकी तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख रुपए है, आपके 3 बच्चे हैं, बीकन हाउस में पढ़ने जाते हैं, यू आर नॉट रियली सेविंग मच, कहने को आप लाखों में कमा रहे हो, राइट, बट यू आर वन हॉस्पिटल ट्रिप अवे फ्रॉम लूजिंग इट ऑल। अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई, कैंसर की ट्रीटमेंट आ गई अगर किसी पेरेंट की, या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी आ गई, या इवन ब्रीच प्रेगनेंसी हो गई, राइट, मतलब आपकी प्रेगनेंसी है, लेबर में है बीवी, एक्सरे में आ गया जी बच्चे ने करवट ले ली, चले जी अब सी सेक्शन करना है, चले जी लाएँ जी 1.5 लाख 1.25 लाख व्हाटएवर जो भी अमाउंट होती है, राइट। सो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में हर वक्त फेयर में रहती है, बिकॉज यू आर मोमेंट अवे फ्रॉम लूजिंग इट ऑल। एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे क्राइम भी कितना है, राइट। अगर आपसे कोई मोबाइल छीनने आया है और गलत जगह उससे गलती से गोली चल गई, एक तो ना आप मर गए,
मर गए, खल्ली वल्ली गए दुनिया से, अब पीछे वाले संभाले अपने आप को, राइट। बट गोली ऐसी जगह लगी कि आपको डिसेबिलिटी हो गई ज़िंदगी भर के लिए। आपको याद होगा एक मूवी, तुमने वो देखी है, बॉर्न ऑन द 4th of July? क्या मूवी है। तो उसमें क्या होता है, टॉम क्रूज जाता है वियतनाम वॉर में, पहले दिन लोअर स्पाइन पे ऐसी जगह गोली लगती है कि वो बेचारा व्हील चेयर बाउंड हो जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। ऑलिवर स्टोन की सारी फिल्में देखें आप, 4 घंटे से छोटी नहीं होती इसकी फिल्में, बहुत अच्छी मूवी है। तो ये एक बहुत बड़ा फेयर है। क्या गलत जगह गोली की अपाहिज ना करे अल्लाह इस मुल्क में किसी को, वरना तो आप व्हील चेयर चला ही नहीं सकोगे। अभी तो हम पैदल फिर गटर के ऊपर से छलांग मार लेते हैं, व्हील चेयर वाला क्या करेगा, यू गेट इट। सो हम एक कांस्टेंट फेयर में रहते हैं कि वी आर वन फक अप अवे फ्रॉम लूजिंग इट ऑल। अब जैसे कल मैं गाड़ी चला रहा था बीवी बच्चे के साथ, रात को 1:30 बजे, मैं बच्चा तंग कर रहा था, थोड़ा सा क्रैंकी हुआ था, मैं आइसक्रीम खाने ले गया, फिर मैंने सोचा थोड़ा ड्राइव करें आगे। तो आगे जा रहे थे, अच्छा चूंकि मैं यहाँ रहता हूँ और मैं इतनी सीसीटीवी फुटेजेस देखता रहता हूँ और थोड़ा सा मैं अटेंटिव भी हूँ इस तरह, तो मैंने देखा एक गाड़ी फजूल में कोने में खड़ी थी और मुझे देखते ही वो गाड़ी यूँ आगे आ गई। अब गाड़ी जो है वो थी एक इदारे की, नंबर प्लेट से साफ जाहिर था, बट यू नेवर नो उसमें जो भी अफसर बैठा है वो नशे में है, या वो अब्यूज़ करने के मूड में है, या पावर अब्यूज़ कर रही है, या जनरली खर दिमाग टाइप के हैं जिनको अपनी पावर एक्सरसाइज करने का मज़ा आता है। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। उसको तो नहीं पता ना गाड़ी में कौन बैठा है। तो वो गाड़ी आगे आ गई। अब मैं तो अलर्ट था, अब मैं अभी कोई एक्शन होगा, तो मैंने गाड़ी थोड़ी सी स्लो कर दी। अब उसने भी स्लो कर दी, फिर मैंने ओवरटेक करने की, उससे मुझे दबाया, मतलब कि वो जाने नहीं दे रहा। मैंने बोला यार ये किसी और मूड में, तो फिर मैंने उसको ऐसा इंप्रेशन दिया कि मैं भी सीधा जा रहा हूँ, बट जैसे ही यू टर्न आया मैंने यू टर्न लिया और मैं निकला। तो यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। अगर उसमें कोई बैठा होता इस तरह का, या कितने कराची में इस तरह के वाइट कोरोला फैक्टर, या कोई किसी गार्ड वाले गाड़ी ने फजूल में आपसे पंगा ले लिया बिकॉज वो नशे में था, गोली वोली चला दी कुछ भी, सो लाइक, और फिर होना भी कुछ नहीं है। या तो स्टेट आपको फिर संभाले, स्टेट आपको इंसाफ दिलाए और इंश्योर करे कि वो पैसा भरे आपको, या अगर कोई ऐसी इंजरी हो गई है तो इलाज मुआवजा वो भरे, कुछ भी नहीं होता है। सो यूर ऑन योर ओन। सो हमारी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो ऑन योर ओन की आती है, और उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि फूक फूक के चलना है, अल्लाह से दुआ करते रहना है कि भाई कोई फकअप ना हो, और कोर्ट कचहरी पुलिस अस्पताल अल्लाह से दूर रखे, चलते फिरते उठा ले, वरना आप ज़िंदगी भर के लिए रुल जाएंगे। तो चूंकि हमारा माइंड मेकअप इस तरह का है ना कि हमने इलाज भी खुद कराना है, हमने अपना ख्याल भी खुद रखना है इन वर्स्ट केस सिनारियोज़, तो इसलिए जो है ना फिर वो फेयर जो है ना आपको हर वक्त इस तरह करके रखता है कि जी तिजोरी में रखो सारा। मुझे याद है पुराने ज़माने में वो बॉलीवुड मूवीज़ जो होती थी 70s 80s की, उसमें एक टर्म यूज़ होती थी रसोई की चाबी। बहू घर पे आ गई है, रसोई की चाबी है। आई एम लाइक, रसोई की चाबी यानी किचन की चाबी कौन सी होती है भाई? मैं जितने घरों में गया वहाँ तो किचन में चाबी नहीं होती। टर्न्स आउट कि कुछ लोग होते हैं जो कि अब तो खैर हम एक मास प्रोडक्शन के दौर में रहते हैं, जब मास प्रोडक्शन है और फिर क्वालिटी भी वाली नहीं है, तो चीज़ें उतनी आउट ऑफ रीच भी नहीं है। फॉर एग्जांपल 100 साल पहले लोग चॉकलेट खाते नहीं थे, दिखाते थे, अब हमारे फ्रिज में हर वक्त रखी होती है, ठीक है ना। सिमिलरली किसी ज़माने में घी शक्कर जो है इतना महंगा होता था कि वो सेफ में होता था, और जो घर की सास है उसी के पास एक्सेस होता था और वही देखती थी, और नौकरों पे नज़र रखने के लिए कि भाई वो रसोई से कुछ चीज़ें ना खा लें, तो ताले में रखती थी। तो बहू आज से तुम इस घर की महारानी हो, ये लो रसोई की चाबी, गेट इट। तो जहाँ घी पे ताले लगे हों भाई जिस मुल्क में या जिस रीजन में, तो वहाँ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट ओवरऑल कंजूस हैं, देसी कंजूस हैं, हर जगह जाके कैलकुलेटर निकालना और जो है अपने आप को गंदी हालत में रखना, मतलब वो एक निखार आना चाहिए यार। पैसा, मैं नहीं कह रहा बंदा शो ऑफ करे या फ्लेक्स करे, लेकिन भाई कुछ तो झलके आपके ऊपर से, पता तो चले। एक बार मैं शारजा में खड़ा था भाई, रोला स्ट्रीट में। बाय द वे फन फैक्ट जितने लोग देख रहे हैं, जूस वर्ल्ड जो है ना, जो दुबई और शारजा दोनों जगह है, जूस वर्ल्ड आप लोगों ने देखा होगा, अलरेगा में भी है दुबई में, जहाँ पे बहुत सारे आपको लगता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आ गए और फल ही फल लटके हुए, नारियल और अनानास एंड दिस एंड दैट, वो भरी होती है दुकान, वो बड़ी यूनिक है। तो जूस वर्ल्ड पता है किसकी है? जॉन अब्राहम की। हाँ, सो शारजा में उसकी एक ब्रांच खुल रही थी। So I was like, why the fuck is John Abraham like inaugurating Juice World?
फिर मैं आई डग इट अप, तो पता चला वो ओनर है। तो शारजा में रोला में उसकी ब्रांच खुलनी थी, तो उसके पास ही जूस वर्ल्ड के पास देयर वाज दिस प्लेस। मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ चाय पी रहा था, राइट। और पीछे एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट थी, राइट। जिस तरह लुलु हाइपर मार्केट है ना, बट लाइक उससे थोड़ा सा छोटा, बट अगेन काफ़ी बड़ी थी। तो एक बंदा था साउथ इंडियन लुकिंग, और उसके पास कोई 80s की कोरोला थी, और वो बड़ी चमचमाती हुई फुल मिंट कंडीशन में, और वो उसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहा था, दबा के साफ़ कर रहा था। तो मेरे दोस्त ने पूछा, ये देख रहे हो हाइपर मार्केट? मैंने हाँ। कह रहे इसका ओनर पता है कौन है? मैंने कौन? कह रहा वो जो गाड़ी साफ़ कर रहा है। तो मैंने कहा भाई इतनी गर्मी में उछल उछल के क्यों गाड़ी साफ़ करे, किसी बंदे को देते। तो कह रहे नहीं, ऐसी तो पैसे बचा बचा के हाइपर मार्केट बनाई है। सिमिलरली अगेन उसी ब्लॉक में एक बंदा था, एंड इट्स ट्रू स्टोरी, यू गाइस कैन गो एंड चेक। साइकिल पे वो नहीं बाल्टी में काले चने मिलते हैं मसाले वाले, ग्रीस हुए हुए, लाइक मसाले में लेस हुए होते हैं, और काले चने वो जो पुड़िया में डाल डाल के देते हैं। तो वहाँ एक बंदा बेचता था, और उसके बाद बहुत रश होता था, राइट। वो शाम को आता था साइकिल पे, उसके बाद इतनी सी बाल्टी होती थी, 1 घंटे में ख़त्म हो जाती थी। तो अगेन मेरे दोस्त ने पूछा, कह रहा है कि ये जो बिल्डिंग देख रहे हो जिसमें नीचे कार शोरूम है और ऊपर ऑफिस हैं? मैं हाँ। कह रहा है इसका ओनर कौन है? मैं पता नहीं। कह रहा है जो छोले वाला है। मेरा तेरा दिमाग सही है क्या? कह रहा है हाँ, ये कोई 30 साल से यहाँ छोले बेच रहा है, अपेरेंटली ही डज वेल एंड आई कुड सी। उसके बाद कस्टमर बेस तो बहुत था, उसने पैसा बचाया, पैसा बनाया। और वैसे यार साउथ इंडियंस को पैसा बनाना आता है, ये बात, और इंडियंस को इन जनरल पैसा जोड़ना आता है, ये आर्ट मैंने देखा है। उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो मैंने बोला भाई अब इसके पास कार शोरूम है, ऊपर ऑफिस है, तो यहाँ क्यों करता है? वो कहता है यार मुझे मज़ा ही इसमें आता है, और मैंने ज़िंदगी भर किया ही यही है। तो मैं इस मुल्क में अगर आया हूँ, अपना मुल्क छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, तो एसी में बैठने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ही हैड मेड सो मच, वो हम्बलनेस। सो लाइक देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग हम्बल एंड बीइंग सुपर कंजूस। तो वो कंजूसी नहीं कर रहा था, पर वो कहता है यार मेरी रूट्स, मुझे मज़ा ही इसमें आता है। इट्स लाइक आई कैन टेक माई मॉम टू अ पैलेस और बोलूँ कि भाई यहाँ पे पूरे आपके पास पूरी फ़ौज है नौकरों की, बट वो जब तक खुद पराठे नहीं बनाएंगे उनको मज़ा ही नहीं आएगा। बोलेंगे किसी को भी नहीं आता, मैं बताती हूँ, यू नो। तो कुछ लोग अपने रोल में इतने ढल जाते हैं। खैर बात कहाँ से कहाँ निकल गई, इस पे भी कभी आऊँगा मैं कि दुबई में हाउ लाइक यू नो व्हाट आई लर्न कि इंडियंस कैसे पैसा जोड़ते हैं, और कैसे यू नो देयर इज़ अ रीज़न कि इंडियन बिजनेसेस बहुत दिखते हैं आपको दुबई में, पाकिस्तानी आपको सिर्फ मोस्टली ब्लू कॉलर में दिखेगा, या वो कैब चला रहा होगा या वो मजदूर होगा। लुलु हाइपर मार्केट आपको बहुत सारी मिलेंगी, किसी पाकिस्तानी की हाइपर मार्केट आई डोंट थिंक सो। आपको किसी भी मॉल में दुबई में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। दुबई मॉल, मॉल ऑफ एमिरेट्स, मिर्दिफ मॉल, फेस्टिवल सिटी, यू नेम इट। आपको बॉम्बे चौपाटी मिलेगा, सवर्णा भवन, मैंने दुनिया के जिस शहर में गया हूँ सवर्णा भवन मुझे वहाँ दिखा है। बाय द वे उसके ओनर ने मर्डर भी किया हुआ है। उसकी भी एक स्टोरी पढ़ रहा था। एनीवे, सो दे नो हाउ टू मल्टीप्लाई। सो इस तरह जो लोग रह रहे हैं, अगर तो ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरह हम्बल हुड में रह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फॉर्चून बिल्ड कर रहे हैं, फॉर्चून इन द सेंस कि वो अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड कर रहे हैं, तब तो समझ आता है। मगर अगर बस वही जमा जोड़ कर करके और दीवारों में और बिस्तर के नीचे फंसा रहे हैं और ब्रेकिंग बैड वाला सीन बना रहे हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं ऐसी ज़िंदगी का। इससे तो बेहतर है बंदा फिर पाकिस्तान में ही रह के काम कर ले, क्या फ़ायदा, वही आपकी वाली बात। तो खैर बहुत सारे रीजंस हैं, एंड आई नो वेयर यू कम फ्रॉम, बस कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज rant of a sexually deprived husband. Hi Junaid bhai, I'm writing this email to you more as a rant and a complaint other than anything else, because I can't complain or rant about such things to my friends. I'll keep this rant short. My wife and I are married for, अच्छा इन्होंने लिखा me and my wife are, तो ये जान लें कि जब भी आप ऐसे रेफर करें तो it's always my wife and I. My friend and I decide to watch a movie. My husband and I will go out tomorrow. So लोग अक्सर ऐसा लिखते हैं। मुझे भी मेरी बीवी ने सिखाया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कुछ नहीं अंग्रेज़ी नहीं आती। सो इट्स ऑलवेज माई वाइफ एंड आई, ओके, ऐसे रेफर किया करें। आर मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 5 years and have a 2-year-old son. We had a love marriage and otherwise happily married, alhamdulillah. The only major problem is the intimacy and sex life, which has almost become non-existent
not that we are breaking beds earlier anyway. Acha, not that we were breaking beds earlier. Many a times I have tried to make a move and have been rejected. I'll explain more of this in a bit. This has not only hurt my feelings, but it is also starting to hurt my confidence, as I have now stopped making moves in the fear of getting rejected and feel ashamed. The problem that I have analyzed is that my wife takes sex as a chore, because often when we have sex, the bed sheets have to be changed the next morning, even in some cases the blanket or the quilt cover, regardless of whether they are dirty or not, and obviously the compulsory shower as well afterwards. This is too much work for her, and often at times we have had to time the intercourse in keeping with her shower schedule, which is not always convenient or possible. That's not okay. Then of course there is the monthly issue of khas din, which takes a week away anyway. So basically, I've had to schedule an appointment for sex in recent times, which has now fallen away as well, because I feel that all of this is too much work for her. I have, of course, spoken to her about this, but every time she brushes it under the carpet, one way or the other, and I don't try to force the issue as well. On a few occasions, the conversation has led to sidelines of "mera jism, meri marzi" sort of mentality. I'm not against feminism; I fully endorse it. But Junaid bhai, I think this is pseudo feminism that she's portraying, where she's basically using it as an excuse to avoid sex. Not always, but this has happened a few times. Another issue that I feel is the cause of this is that after having her baby, she seems to have lost confidence in her body. Yes, initially she gained weight after birth, which is totally normal, but she has now almost come back to her baseline. And to be honest, I don't even care about this. I keep telling her every day that she is the most beautiful woman for me, and I love her the way she is. I keep telling her in different ways, but I feel this has not worked at all. I'm extremely frustrated. I'm sensible enough to understand that sex is not the only purpose of marriage as well. All the other aspects of our marriage are very beautiful, but this is something that is eating me up inside, that I'm not being able to feed my hormonal urges in a way that is fully allowed by our religion and society. I have started masturbating a lot, literally any chance I can get, because I don't see any other way to deal with this matter. I don't want to upset her by forcing this issue, as I'm sure it will create a rift between us, but I cannot think of any other way to make sex happen between us unconditionally. Condoms पड़े expire हो गए हैं. Never knew they had an expiry date. Oh God. I know you have received many more emails such as this, but I look forward to your opinion. और कुछ नहीं तो तसल्ली ही दे दें please. नहीं, this is absolutely you're not at all wrong. ये आपका एक right है जो कि आपको religion, society हर उसमें allow है. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई you are in today's day and age where literally sex has become such a easy commodity to pursue, you are still being faithful or trying to be at least. So इसमें जैसे आपने बोला कि according to schedule or appointment, ये तो सबसे I mean it's not nice. You can't plan it. You can't plan feelings कि कल I will love you more at 8 p.m. You know what I'm saying? ज़ाहिर मोहब्बत तो रहती है, but कभी कभी sometimes your spouse does something for you, or they look a certain way that आपके दिल में आता है कि यार I really genuinely love this person, or you see them, or you look forward to see them. अगर वो, for example, if she's gone to her mom's or for some work trip, you look forward to her, and then feeling जागती है, तो वो स्केड्यूल तो नहीं कर पाते ना, वो खुद अंदर से आती है. तो सिमिलरली ये भी एक अर्ज है. भूख आपको क्या टाइम से तो नहीं लगती ना कि भाई कल एग्जैक्टली दोपहर 1 बजे मुझे बिल्कुल शदीद भूख लगेगी और मुझे लंच करना होगा. ये तो कभी भी हो सकता है. तो इसको टाइम करना जो है ना, इट्स लाइक लिटरली टेकिंग अवे द चार्म, क्योंकि द रियल चार्म इज़ in the spontaneity. For example, you're literally like lying next to each other, talking about something, and suddenly you're like, okay, let's get on with it, and it's beautiful somehow. And it's beautiful that way. But sometimes like you're literally leaving for office and you're like, let me have another round, मज़ा आता है. तो जब आप यही चीज़ें ना एक्सपीरियंस कर सके अपने ही स्पाउस के साथ, तो फिर और कहाँ करेंगे, राइट?
स्पॉन्टेनिटी इज़ फन. रही बात कि यू सेड कि लाइक शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट चेंजिंग द शीट्स और क्विल्ट वगैरह वगैरह. सम पीपल आर कुछ लोग वाकई थोड़े से एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं सफाई सुथराई के मामलात में. चाहे वो अपनी पर्सनल सफाई हो, वो तो ज़ाहिर है, वो तो आपको करनी भी चाहिए, जैसा कि हुक्म भी है, राइट. यू हैव टू बी पाक साफ आफ्टर द डीड. ठीक है. और कुछ लोग जो हैं उनको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता, वो आई कॉन्ट स्लीप ऑन द वेट स्पॉट और इट हैज़ टू चेंज दिस दैट. तो फिर वो ज़ाहिर है आपको चोर ही लगेगा, क्योंकि फिर सारे काम जो फिर उन्होंने, या तो फिर काम बांट लें कि मैं शीट चेंज कर दिया करूँगा या मैं ये कर लूँगा. ट्राई टू फैसिलिटेट हर सम इन सम वे. मे बी दैट्स वाई उनको ऐसा लगता हो, क्योंकि लाइक आई सेड सम पीपल आर नॉट कॉन्फिडेंट with their own body. I'm coming to the kid wala part later on, but like generally, some people are very particular about I might smell bad, orifice होता है, उस पर कंट्रोल नहीं होता. आप डिओड्रेंट हर जगह तो नहीं लगा सकते ना, आप समझ रहे मेरी बात. तो कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं इन मामलात में, एंड दे डोंट अलाउ यू सर्टन थिंग्स फॉर द सेम रीज़न के दे डोंट वांट यू टू हैव दैट एम्बेडेड के ओ यार सम पार्ट वुड स्मेल बैड और समथिंग. कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने बारे में. ठीक है, दैट कुड बी वन रीज़न. बट ये वाली जो बात है ना, आई थिंक तब तक तो ये एपिसोड आ गई होगी. पिछली वाली एक और आई थी, उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन थी. तो सी, हैविंग अ चाइल्ड चेंजेस अ वुमन अ लॉट, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो इमोशनली. ट्राई टू एड्रेस कि कहीं वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से तो नहीं गुजर रही. बॉडी चेंजेस अ लॉट ऑफ कोर्स, especially if it's C-section. तो उसमें जाहिर है some people get scars and this and that, वो सारा उसके साथ. तो कुछ लोग वाकई नहीं कॉन्फिडेंट होते और उनको ये बड़ा मसला रहता है. That's why some people suggest no lights, और उसकी वजह यही होती है कि they don't feel confident in their body. तो वो नहीं चाहते कि आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करें, या फिर आप वियर्ड आउट ना हो जाएं. एंड लाइक कॉन्शियस तो होता है इंसान ज़ाहिर है अपने बारे में. तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. तो दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड विद हर. टेक हर इनटू कॉन्फिडेंस एंड आस्क हर अगेन, जैसे मैंने पिछली भी एक ईमेल में यही बताया था कि मे बी फॉर हर इट्स सो मोनोटनस दैट शी इज़ नॉट एन्जॉइंग. तो उनसे आप ये चीज़ कम्युनिकेट करें, उनसे पूछें कि व्हाट इज़ इट दैट यू लाइक एंड व्हाट इज़ इट दैट यू डोंट लाइक. दैट्स हाउ यू लर्न. आपको देखिए, हर बंदा अपने एक्सप्रेशन में डिफरेंट होता है. सिमिलरली सेक्सुअल एक्सप्रेशन भी एक लैंग्वेज है. कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बहुत पसंद होती, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद होती, राइट. एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो वो आपका काम है पूछना कि लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैरिज. इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट इमोशनल बट फिजिकल भी. तो उसमें टेक हर इनटू कॉन्फिडेंस एंड आस्क हर जेन्युइनली व्हाट इज़ इट दैट यू लाइक, या व्हाट डू यू थिंक कि इस पूरे अरसे में, जितना अरसा हमारी 5 साल की शादी है, 5 साल कुछ कोई पीरियड नहीं है, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, तो वी आर एट इट. TMI. तो ये कोई टाइम नहीं होता. सो उनसे पूछें कि ओवर द कोर्स ऑफ 5 years के व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉन डाउन क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज, एंड वेयर डू यू थिंक द इम्प्रूवमेंट नीड्स टू बी. तो फिर यू यू वर्क ऑन इट. तो मोनोटनी कभी कभी इंसान को खा जाती है. तो और बहुत से लोग नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे होते, बहुत से लोग नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे होते. तो ट्राई टेक इट इनटू इट, एंड इट्स नॉट लाइक कि आप उनको बोले कि अपनी दोस्त से बात करें और आप उनकी दोस्त से पूछ लें. ये एक ऐसी डिटेल है, जैसा कि आपने लिखा कि आप किसी दोस्त को भी नहीं बता सकते. दैट्स वाई यू रिटन इट टू मी. सो ये कॉन्वर्जेसन आपस में ही होनी है, जो भी होनी है, किसी के थ्रू नहीं हो सकती. अदर देन द फैक्ट कि अगर आप किसी प्रोफेशनल सेक्सोलॉजिस्ट को देखें या साइकोलॉजिस्ट को देखें, ट्राई टू एड्रेस वेयर द प्रॉब्लम इज स्टेमिंग फ्रॉम. सो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. रही बात आपकी दैट यू हैव रिजॉर्टेड टू मास्टरबेशन, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. स्पेशली द फैक्ट कि व्हेन यू कैन satiate your urges the right way, then why go for that way? But वही when push comes to shove वाली बात है, and that should not be the case in और फिर ये कि अगर इसके बाद भी, अगर शादी के बाद भी अगर यही करना, तो बंदा शादी से पहले लगे भी तो थे ना सारे. तो अगेन
शादी सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं होती, बहुत सारे जुज़ मिल के एक शादी की गाड़ी बनाते हैं जिसको चलना होता है, ज़िंदगी होती है, मगर ये भी बहुत अहम जुज़ है। तो अगर आपने सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे ही चलना था इवेंचुअली, तो अगर आपको 5 साल पहले ये बात बताई गई होती तो आप शायद फिर कभी भी नहीं डिसीजन लेते, राइट? एज मच एज यू लव हर, एज मच एज यू लव योर चाइल्ड एंड एवरीथिंग, अगर ये कंडीशन किसी को बताई जाए कि भाई आप शादी तो कर रहे हैं मगर 5 साल बाद कुछ नहीं मिलेगा, 99% पीपल विल वॉक आउट, राइट? सो इम्पॉर्टेंट तो है ये चीज़। तो मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा जो मैंने पिछली एक एपिसोड में ईमेल को कहा था कि आप इसको थरली डिस्कस करें, ट्राई टू कम्फर्ट हर, ट्राई टू एड्रेस प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, इज देयर समथिंग रॉन्ग इन योर हाउस होल्ड, इज देयर समथिंग रॉन्ग इन द रूम सेटिंग। कुछ भी चीज़ ट्रिगर कर सकती है, कुछ भी चीज़ इंसान को बोर कर सकती है। तो कोई डोमेस्टिक इशू तो नहीं है घर में किसी और रिलेटिव के साथ, या इज शी बोर्ड, डिड यू गाइस ट्रैवल एनी टाइम सून, लाइक एनी टाइम अर्लियर, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ट्रिगर करें मोहब्बत को। डेट नाइट्स आप कितनी करते हैं? हफ्ते में एक होनी चाहिए कम से कम, फ्राइडे नाइट डेट नाइट्स होनी चाहिए। यू शुड गो आउट ऑन फॉर डिनर। बच्चा आपका 2 साल का है, अगर वो घर में रह सकता है, यू नो, 1-on-1 मूवी देखने चले गए, डिनर करने चले गए, टेक अ वॉक, यूड बी लकी इफ़ यू फाइंड अ स्पॉट टू वॉक इन कराची, बट स्टिल कोई एक्टिविटी करें जिसमें आप दोनों हो, बच्चा ना हो, क्योंकि आप दोनों खुश होंगे। इनिशियली जो मेन नोड्स हैं वो मिलेंगे, तभी आगे जाके सर्किट काम करेगा, राइट? तो आप दोनों का मेंटली और फिज़िकली एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। इवन दो एक पेज पे होने से हमारे मुल्क पे बड़े नुकसान आते हैं, लेकिन इंडिविजुअली तो आप हो सकते हैं। तो इसको एड्रेस करें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये अगर इस चीज़ की आदत आपने भी लगा दी और उन्होंने भी लगा दी कि जब इसके बगैर काम हो रहा है तो क्या ज़रूरत है करने की, तो फिर वो डिवाइड चलता ही जाएगा। फास्ट एंड द फ्यूरियस का आखिरी सीन हो जाएगा, गाड़ियाँ यूँ चली जाएगी, एंड निप इट इन द बड बेसिकली। अभी आपने आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम, तो उसको एड्रेस फ़ौरन करें एंड सी वेयर इट गोस, ठीक है? गुड लक टू यू। ऑलराइट जी, आज का लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव टू रन फॉर अ डिनर। Came so far aiming for goals that aren't even mine. Hi Junaid, introduction. Hope you are well. A little background. I'm 23-year-old living in Toronto, Canada since a year, belonging from a higher middle class household. I'm clean as fuck, never smoked, drank, or even vape. You'll understand the context later. When I was 16, I got into my first relationship with a guy who's my current boyfriend. He belonged from a lower middle class family and he had that arc of making it big in the future. He was 19 at the time when he went to US to make big. He being in my adolescent phase, I was very intrigued by his thought of making it big, establishing himself in his business mind, that subconsciously I projected his dreams as mine and started developing similar goals. Fast forward to 2021, I came to Canada to live his dream, thinking all this time it's mine. I've been lucky enough to get a corporate job without any degree. Meanwhile, I'm pursuing my bachelor's in business management. I do another job studying and I'm starting an Amazon business too. I'm sucking and failing at managing everything. It's okay, you'll get along. Back home, life was easier, better and stress-free. After coming here, I realized true feminism lies in motherhood, in homemaking and in nurturing your own soul. I'm a very dreamy, artistic and a very creative person since the beginning, for whom numbers never made sense, neither did money. I understand what I do takes care of my necessities, however, it's neither feeding my soul nor making me happy. I'm under constant pressure to make it big, that I realize I'm missing out on true essence of life. After getting into this rat race, which is advertised as freedom for women, I realize it's not what women are made for. Men are the providers and are made to provide and protect, whereas female is made for nurturing. I understand how the world has pushed the population in this whole role reversal thing, and somewhere how men take advantage of their roles as providers, push women to take on that role too, and they are so amazing for doing that. I had a conversation with my boyfriend about the same thing, and we are on the same page. However, in the past, my boyfriend had lied to me about drinking, smoking, going to strip club, which I eventually forgave him because I thought he was very young and naive in his 19. Now he's 25, clean, focused, responsible, building his own business and loves me unconditionally. However, sometimes
Things from the past haunt me and I still haven't forgotten. I'm afraid of depending on him. However, he has given me the offer to stay at home and chill wholeheartedly. Questions. Am I thinking like this because life has started to become harder and I can't keep up with that? So my laziness is making me thinking all this? Or I got myself into something I wasn't even made aiming for in the first place? Number 3. Is it okay to forgive and forget, or is it better to end things and move on if you can't forget? Please let me know what you think about this situation. अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि आप हैं कहाँ से. आपके नाम से I'm understanding you from the neighboring country. And also, how did you guys manage to go to US and Canada? Like, ऐसे ही उठ के चले गए. Good यार. I mean, that's wonderful. हमें भी सिखाएं. खैर, तो ये खातून हैं, 23 की हैं, कनाडा में रहती हैं, परसुइंग. वो एक फिल्म का कोट है, नेवर चेंज सिटीज़ बिकॉज ऑफ योर बॉयफ्रेंड. वो क्या था कि अक्सर फिल्मों में या किस ज़माने में बहुत मूवीज़ देखता था, तो उसमें ना ये अक्सर सुनने को मिलता था कि विमेन हु लेफ्ट देयर टाउन in pursuit of supporting their boyfriend ended up bringing their hearts. Again, it's subjective matter and I'm trying to push any idea on you. ये जहाँ से भी इनका ताल्लुक़ है, बड़ी स्ट्रेस फ्री लाइफ थी और कनाडा में जाके पता चला कि ख़वातीन का काम नर्चरिंग है एंड मेन आर दी प्रोवाइडर. और ये जो दिस होल सूडो फेमिनिज्म बकौल इनके दैट हैज़ मेड द वर्ल्ड गो इनटू अ रिवर्सल रोल, और ये सब फॉल्स है. एंड देन लाइक women should be nurturing and men should be providing. उसमें जाए बगैर मैं आपको एक बात बताता हूँ. अब जैसे आपने कहा कि आपके बॉयफ्रेंड हैड सम वाइसेस बैक इन द डे एंड नाउ ही इज़ क्लीन, राइट, और आप उसको भूल नहीं पा रही हैं, तो पहले उसको एड्रेस करते हैं. देखिए, देसी मैन नॉर्मली यहाँ पे दे वांट कि बीवी घर पे रहे. उससे होता ये है कि एक बार जब उनको आदत हो जाती है ना कि चलो आई एम बीइंग प्रोवाइडेड फॉर एंड एवरीथिंग, तो फिर देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स में इसलिए ज़रूरी है ख़वातीन का होना, टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी एंड सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, इज़ बिकॉज कि फिर आपको ना कोई इस तरह मिसयूज़ ना करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बॉयफ्रेंड ने, मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक बॉयफ्रेंड है, वो बोल रहा है कि नहीं बेबी तुम जो है घर पे बैठो, आई विल प्रोवाइड फॉर यू, आई विल डू दिस डू दैट. 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन, करीबी मैं ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, जब उसे देख लिया इसको कुछ आता भी नहीं और इसने कहीं जाना भी नहीं है और ये टोटली मुझ पर डिपेंडेड है, नाउ आई कैन डू व्हाटएवर द फक आई वांट, एंड मेन टेक एडवांटेज ऑफ दैट, नोइंग कि बीवी कहाँ जाएगी, या अब तो बच्चे हो गए छोड़ के कहाँ जाएगी, इसको कोई काम भी नहीं मिलेगा, घर वालों ने बोला था कि वापस नहीं आना. सो वो चूँकि वो एडवांटेज ना हो, दैट रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क हैज़ टू बी देयर. थोड़ा बहुत कुछ, हाँ, कुछ लोगों की बिल्कुल ख्वाहिश होती है, ज़रूरी नहीं है कि सब ने जॉब करनी है. कुछ लोग कुछ ख़वातीन वाकई चाहती हैं कि दे वांट टू स्टे एट होम एंड लाइक टेक दैट रोल, तो kudos टू देम. मगर मैं फिर भी मशवरा सबको यही देता हूँ कि सम फॉर्म ऑफ इकोनॉमी. सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव अ पॉकेट मनी, should invest somewhere that can enable your freedom somewhat. You get what I'm saying? ये गारंटी रहे आपके पास, या आप उसका कुछ छोटा मोटा काम शुरू करें. हैव सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी गोइंग ऑन. उससे होता ये है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहता है, एंड देन वंस यू आर कॉन्फिडेंट यू वोंट टेक एनी शिट फ्रॉम एनीवन, क्योंकि आपको पता है मैं सर्वाइव कर सकती हूँ, राइट. अगेन, इसमें कोई वो फेमिनिज्म वाली बात नहीं है, इट्स जस्ट सेविंग योर सेल्फ, प्रिवेंशन फ्रॉम अ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन. गेट इट? तो एक्सप्लॉयटेशन ना हो इस वजह से यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ रोल. अच्छा, रही बात ये कि आपने जैसे कि बोला कि बिकॉज यू स्पेंड सो मच टाइम विद योर बॉयफ्रेंड एंड यू स्टार्टेड प्रोजेक्टिंग हिज ड्रीम्स. ऐसा होता है अगर आप किसी कंपनी में किसी शख्स के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताओ, समहाउ आप लोगों की टोन भी पिक कर लेते हो, समहाउ यू स्टार्ट पिकिंग अ वर्ड्स, कि वो बंदा ज़्यादा वर्ड बोलता है तो आपकी भी वर्नाकुलर का हिस्सा बन जाता है. सो जब वर्ड्स के साथ ये हो सकता है तो आदतें भी हो जाती हैं.
मैं बैक स्ट्रीट बॉयज़ और बॉयज़ोन सुनता था, फिर देन आई स्टार्ट हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स हु वुड लिसन टू हैवी मेटल, तो फिर मैं भी इम्प्रेशनेबल एज होती है, इन्फ्लुएंस हो जाता है इंसान, तो मैंने भी अपना म्यूज़िक चेंज किया। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, और ऐसा हो भी सकता है हुआ हो और आपको लगा हो कि मे बी वो ड्रीम जो आप देख रही थी वो किसी और के थे। रही बात द फैक्ट दैट योर बॉयफ्रेंड हैज़ स्पार्क, और जिस तरह का उनका एक माइंडसेट है, यू नो, गो गेटिंग, दैट्स वंडरफुल। मगर मैं सबको इस ख़ास तौर पे इस तरह के ब्रोस को यही मशवरा देता हूँ कि लाइक वर्क लाइफ बैलेंस, आई नो आई सक एट इट टू, बट एटलीस्ट आई एक्नॉलेज के नहीं कर पा रहा मैं, या मैं नहीं करता, बट एटलीस्ट आई शुड बी मोर विजिलेंट टूवर्ड्स द बैलेंस। तो उसमें कहीं कभी कभी ना लोग अपने काम से शादी कर लेते हैं या अपने ड्रीम से शादी कर लेते हैं, एंड दे कांट लेट गो ऑफ दैट। ठीक है, ड्रीम्स शुड बी परस्यूड fiercely, no doubt about that, but not at the cost of your loved ones. That's what I'm saying, because nobody at their deathbeds, nobody in their deathbed ever said, I wish I had worked more, you know. They always say, I wish I had spent more time with my wife or with my kids. तो ये ज़रूर रखिएगा। रही बात ये कि आपका जो सवाल था, am I thinking like this because life has started to become harder and I can't keep up with that, so my laziness is making me think. It could be that, क्योंकि अगर तो आपकी रियलिटी ये रही है for the longest time, if you were you know, conditioned to live in a very stress-free environment and you were looked after and there were people around you doing things for you, so it becomes very difficult to be independent. See, that's why, you know, a lot of desi men struggle abroad, क्योंकि हमें आदत ही नहीं होती पानी उठ के लेने की या चाय बनाने की या खाना बनाने की या कपड़े धोने की। तो मैं भी जब फर्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन के सामने खड़ा हुआ, मैंने देखा, मैंने इसका करना क्या है, इतने सारे बटन्स क्यों हैं इसमें, यू गेट इट, कभी किया ही नहीं होता, तो वी स्ट्रगल। तो वो कंफर्ट की एक आदत तो है और बहुत ख़राब आदत है, और ऐसी है कुछ लोग ज़िंदगी भर उस आदत में ही फंसे रहते हैं, एंड देन दे लुक फॉर अ, यू नो, वो कहते हैं ना देसी मैन ऑफन, यू नो, व्हेन दे मैरी दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ मदर जिनको आते आते हाथ भी लगा सके, दैट्स इट। वो मदर ही चाहिए होती है, वो इतने डिपेंडेंट होते हैं। तो कुछ केसेस में इट्स द केसेस विद वुमेन एज वेल, बिकॉज यू नो दे परहैप्स हैव डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ बीइंग डिपेंडेंट सो मच कि जब टफ टाइम्स आते हैं या फिर हार्डर सिचुएशंस आती हैं तो दे स्ट्रगल। तो दैट कुड बी अ रीज़न। अगर आई वाज़न्ट इवन मेड फॉर ये कि आई गॉट माई सेल्फ इनटू समथिंग दैट आई वाज़न्ट इवन मेड और एमिंग फॉर इन द फर्स्ट प्लेस, कुड बी। जैसा कि आपने कहा कि आपको ये लग रहा है कि वो शायद जो मुझे मेरे ड्रीम लग रहे थे वो मेरे नहीं थे, वो बोरोड ड्रीम्स थे, तो मे बी दैट। सी, again, there's nothing wrong with what you're feeling, and it's good that you have these questions because you were 23, और ये 23, देखें 20s होता ही इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैंने क्या करना है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, शुड आई बी हेयर, व्हाट एम आई डूइंग हेयर। 20s होती ही एज ऑफ एक्सप्लोरेशन है, बिकॉज 18 में तो आप निकलना शुरू करते हो बाहर, राइट, और 2 साल बाद आप 20 के हो जाते हो। तो 20s तो टाइम ही फेलियर्स का है, मैं सबको कहता हूँ, एंड लाइक यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। फेलियर्स बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, मिस्टेक्स नहीं करनी। मिस्टेक और फेलियर में फ़र्क क्या है? फेलियर एक बार होता है, मिस्टेक होती है जो बार बार किया जाए। सो यू डोंट वांट टू रिपीट द मिस्टेक्स, डोंट वांट टू रिपीट द फेलियर्स, बिकॉज देन इट बिकम्स अ मिस्टेक। तो इट्स फाइन अगर आपको लगा कि पहले मैं ऐसी थी लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है, इट्स फाइन। एटलीस्ट यूर थिंकिंग एंड you're not a fish that is going with the flow, right? तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके आज सवाल आए, शायद इस जवाब से आपकी हेल्प हो जाए, एंड एट 24 यू फिक्स योर डायरेक्शन एंड देन लाइक ओके दिस इज़ माई रोल। तो 24 में आ जाए तो अच्छी बात है, 44 में आता तो दुख की बात होती है, राइट? सो डोंट बी शाय। जितने लोग सुन रहे हैं मैं सबको यही कहूँगा कि 20s में घबराना नहीं होता, इट्स द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। आप ढूंढ रहे होते हो मैं किस लिए बिल्ड हुआ हूँ, व्हाट एम आई बिल्ड फॉर, वो मेरा रोल क्या है ज़िंदगी में, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरा पैशन क्या है। तो आप इधर उधर पिन बॉल खेला है, पिन बॉल खेला ना तुमने, बॉल कैसे इधर उधर लग रही होती है, टन 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 टन। तो 20s पिन बॉल होते हो आप, पता नहीं होता जाना कहाँ है। फिर वो जो नीचे वो होते हैं ना वुडन, क्या बोलते हैं उसको,
पैलेट्स, हाँ, तो पैलेट्स फिर आपको डायरेक्ट करते हैं कि उधर जाके हिट हो, उधर जाके हिट हो। और वो पैलेट्स क्या है बेसिकली, दे आर योर एक्सपेरिमेंट्स, राइट। वरना आप और वो डायरेक्शन के साथ, अगर जैसे आप बॉल को होल्ड करो और फिर मारो डायरेक्शन के साथ, देन यू हिट द टारगेट, राइट। पिन बॉल की तरह चलना है, वरना तो बॉल की तरह लगते रहोगे। सो इंट्रोस्पेक्शन इज गुड। तो तीसरा आके, इज इट ओके टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगेन, अब इसमें ये है कि वही वाली बात है कि पास में आप कुछ कर नहीं सकते। अगेन, यू नो, इफ समवन हैज गॉन थ्रू चीटिंग या किसी किस्म का डिस्ट्रस्ट, तो वो होती तो बड़ी बेटर फीलिंग है, राइट। क्योंकि आप अपना सब कुछ दे रहे होते हो एक इंसान को, ट्रस्ट हो गया, लव हो गया, लॉयल्टी हो गई, सब कुछ, और फिर डिसअपॉइंटमेंट किसी भी किस्म की, और जो इस ग्रेव के मतलब लाइक शुरू में कहा कि आई डोंट ड्रिंक, टर्न्स आउट ही वाज अ ड्रिंकर और एटलीस्ट हैड कंज्यूम्ड एट सम पॉइंट, या फिर स्ट्रिप क्लब जाना, ये करना, वो करना। अगेन, आई एम नॉट गोना जस्टिफाई दीज एक्शंस, बट लाइक 19-year-old is going to do a lot of things as long as they understand and realize कि यार that's not the path I should take. तो जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान के अंदर शेम ज़रूर हो और उसको ये ज़रूर एहसास हो। तो कहते हैं ना, कुछ लोग अल्लाह ताला एहसास ख़त्म कर देता है। हम देखते हैं ना आसपास में, यार लोग कैसे जुल्म करते हैं, जानवरों पे कैसे जुल्म करते हैं। हाउ कैन यू थिंक अबाउट हर्टिंग अ कैट, बट सम पीपल डू, क्योंकि उनके दिल से एहसास ख़त्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी सज़ा जो होती है ना गॉड की तरफ से, वो ये होती है कि वो आपके दिल से वो चीज़ छीन लेता है। तो आपको बुरा काम करते हुए बुरा ही नहीं फील होता। सो जब आप शेमलेस हो जाते हो तो फिर वो सबसे बड़ी सज़ा है। सो एज लॉन्ग एज यू फेयरिंग गॉड, जब तक आप गॉड फेयरिंग होते हो, तो आप, ये आपके अंदर एहसास ज़िंदा होता है कि यार ये गलत है, दैट्स अ गुड थिंग। तो अगर उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, अगेन वी ऑल मेक मिस्टेक्स इन लाइफ, और अगर वो रेप्रीमेंड कर ली हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स एन इम्प्रूवमेंट। लेकिन हाँ, अगर वो बार बार हो रही हैं तो फिर देन इट्स कंसर्निंग। Forgiveness takes a lot of courage, and forgiveness is a testament of having a bigger heart. Again, I totally understand and empathize with the fact that how it must have made you feel. Ab ye ke that's in the past, and if you think there is progress and there is an improvement in behavior, so then it's a testament that you have a good guy at your hand जो ये realize करते हैं इन चीज़ों को। वरना it's a very slippery slope, and people tend to slide and then they never recover. बहुत से लोग इन चीज़ों में डूब जाते हैं, फिर बाहर नहीं निकल पाते, चाहे वो औरत का चक्कर हो, शराब का चक्कर हो, जुए का, गैम्बलिंग का हो। So very very tough path to tread upon to recover from. और अगर कर ली है तो अच्छी बात है। Forget का ये है कि it's in the past. If you are going to let it hurt you again and again, तो you're doing a disservice to yourself. Again, forget नहीं किया जा सकता। You can't control what had happened, but what you can control is how it makes you feel. So बिल्कुल बुरा आपको लगा, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए, बुरी हरकत थी, but then with time it has to go somewhere. मरने वाले को हम कब्रिस्तान में छोड़ के आते, उसको साथ साथ लेके, अपना पेन साथ साथ लेके हम नहीं फिरते। Easier said than done. But try to come to terms with it, and if you see improvement in his behavior, that's a testament that you have a good man at your hand. So try to move on. Otherwise, how long do you think it should hurt you, or you should allow it to impact your daily life, and where it's going to end? गलती सब करते हैं, उनसे भी हुई, and it's going to frustrate him eventually. कि like really move on, हो गया, I'm ashamed of what I did, I'm not justifying, but what can be done now other than the fact कि या तो मैं उससे सीखूं या मैं वहीं लगा रहा हूँ। So मैं वहाँ नहीं हूँ अब, so I've learned my way, learned my lesson, and I'm like on the right way. So I would suggest you need to not think of it much. I'm sorry if it's coming across as victim blaming, but that's not my intent. I'm just trying to help you out with the situation. So yeah, it could be any of these things that you have mentioned above.
बट लेज़ी होने का नहीं है लाइफ में कुछ करने का है और ख़ुद करने का है. और डिपेंडेंसी किसी भी किस्म की अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि फिर एक पॉइंट के बाद आके इंसान अपने आप से सवाल करता है, यार मैंने क्या किया लाइफ में. He may have bigger dreams, or like you'll end up getting a nice house and a nice car and everything, chauffeur and everything. But फिर कहीं ना कहीं जाके आप शीशे में देखोगे, आप बोलोगे इसमें मेरा क्या, वो सब उसका है. और कभी गुस्से में उसने जता दिया तो फिर उससे बुरा फीलिंग कोई नहीं होती ज़िंदगी में कि ये सब मेरा है, तुम्हारा क्या, तुम तो घर बैठी रहती हो. You don't want to listen to that. So prevention is better than cure. तो prevention हमने करनी है. Do something as little as you can. अगर if all your economics is not relying on your survival, then do it something on the side, build something of your own. It'll give you meaning in life. Ikigai, find your ikigai and find the drive. Don't be lazy. Do something. Make use of your knowledge. Make use of your intellect. Make use of the fact that you have someone in your life who has bigger dreams. So you don't have to match up, but at least like show some sort of drive in yourself as well, because perhaps that's what attracted him towards you. So yeah, I wish you all the best, and I hope you find the answers. So don't be ashamed of if you're questioning yourself. It's good that you're questioning yourself, and once you start questioning yourself, you eventually lead to an answer, and that's the right way to be. ओके, ख्याल रखिएगा. ऑलराइट, तो ये थी आज की एपिसोड. आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. फीडबैक जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag. अपना ख्याल रखिएगा. आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड पे. खुदा हाफिज़.